بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہم قدم کے ساتھ ناصر محمود خان حاضر خدمت ہے. السلام علیکم. امید ہے ہمارے سبھی دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور آپ کا گزشتہ ہفتہ اچھا گزرا ہوگا. سال 2021 کے آخری مہینے کے بس یہ کچھ آخری ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور سردیاں پوری طرح سے آ چکی ہیں. یہ پروگرام مجھے یاد ہے کہ یہ تقریباً 1 سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا اور اس میں ہم نے یہی بتایا تھا کہ آپ کو اس خطے میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے متعلق ایک پرسپیکٹیو جو ہے وہ ہم آپ کے لیے لے کے آئیں گے اور ان خبروں کو اور اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ بھی بہت اہم اس لحاظ سے ہے کہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر مغرب اور امریکہ آئے روز ان کی طرف سے کچھ ایسے بیانات آتے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کی دوسری بڑی معیشت چین اور تیزی سے ترقی کرتا ہوا ملک جو ہمارا برادر دوست پڑوسی ملک ہے چین، اس کے درمیان ہمیں ایک تناؤ کسی کیفیت نظر آتی ہے. چین ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے کہ اس کے اندرونی معاملات میں مداخلت کسی صورت بھی برداشت نہیں کی جائے گی کیونکہ وہ کسی دوسرے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرتا ہے. چین کا خصوصی انتظامی علاقہ ہے ہانگ کانگ، اور ہانگ کانگ کی ایک تاریخ جو ہے اس حوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گزشتہ پروگرام سے بڑی تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں کہ ہانگ کانگ کا ایشو ہے کیا اور کس طرح سے کہ جب برٹس جو تھے یا پھر اس کے بعد جاپنیز امپیریلزم جو رہا اس کا انفلوئنس یہاں پہ رہا اور انہوں نے قبضہ کیے رکھا، لیکن پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک معاہدے کے تحت اس کو مادر وطن کو واپسی ہوتی ہے، ہانگ کانگ کی چین میں واپسی 1997 میں. لیکن اس کے بعد سے جو ایک ملک دو نظام کا ایک کانسیپٹ لے کے چین وہاں پہ چل رہا ہے، اس کو بھی انڈورس کرنے کے باوجود بھی مغربی ممالک اور امریکہ اس پہ آئے روز کوئی نہ کوئی الزام عائد کرتے رہتے ہیں. اور ان سب الزامات میں سب سے جو بنیادی اور بڑا الزام ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ چین جمہوریت اور جمہوری اقدار کو نقصان پہنچا رہا ہے. حال ہی میں وہاں پہ قانون ساز کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں، اس پہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کچھ اچھی خاصی تنقید کی جا رہی ہے. آج ذرا اس سارے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور چین نے اس کا جو جواب دیا ہے اس نے ایک حقائق نامہ جسے عرف عام میں ہم وائٹ پیپر کہتے ہیں، وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے کہ اصل صورتحال ہے کیا اور جو یہ خصوصی انتظامی علاقہ ہے اس میں اب کون سی جمہوریت ہونی چاہیے. کیا وہی مغربی جمہوریت؟ ہم اپنے پروگرام میں اکثر ذکر کرتے رہتے ہیں نا کہ جمہوریتوں کی بھی اپنی اپنی شکل ہے اور وہ اپنے اس علاقے کے حساب سے ہو جو وہاں کے عوام کو سرو اگر کر رہی ہو تو وہی بہتر ہوتی ہے. اس سب کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے ہم نے آج اسٹوڈیوز میں دعوت دے رکھی ہے. سینئر تجزیہ کار ہیں، محقق ہیں، ڈاکٹر شفقت منیر صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. کیسے آپ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر. الحمدللہ سر. آپ تو ہانگ کانگ گئے بھی ہیں جی جی بالکل. اور آپ نے یہ سارا دیکھا بھی WTO ہوا. منسٹریل کانفرنس جو وہاں ہوئی تھی 2005 میں. ایگزیکٹلی. تو ڈاکٹر صاحب یہ ایک معاملہ جو میں بھی اپنے ناظرین کو بتا رہا تھا کہ یہ ابھی وہاں پہ قانون ساز کونسل کے انتخابات ہوئے ہیں اور اس پہ خاصا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ پھر وہ جو ایک الزامات کی ہوا ہے وہ تیز ہو گئی ہے. G7 ممالک کو لے لیجئے، امریکہ بھی، اور یہ سارے جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہاں پہ ٹھیک نہیں ہوا، یہ جمہوریت کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. معاملہ کیا ہے؟ ایک علاقہ ہے، وہ چین کا علاقہ ہے. آپ لوگوں کو کیا مسائل ہیں؟ آپ کو کشمیر نظر نہیں آتا، فلسطین نظر نہیں آتا، دنیا کے اور معاملات نظر نہیں آ رہے کہاں پہ انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں؟ یہ بار بار چین اور سنکیانگ اور تائیوان، ایشو کیا ہے؟ میں ایشو وہ ذرا مائنڈ سیٹ کا ایشو ہے، لیکن میں جو آپ نے بات کی میں بالکل ٹھیک کہا کہ یہ نظر نہیں آتا، انہیں اپنا آپ نظر نہیں آتا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ رپورٹ پڑھیں فریڈم ہاؤس جو امریکن تھنک ٹینک ہے، اس کی جو 2021 یعنی اسی سال کی رپورٹ، اس میں جو انہوں نے رینکنگ سارے ملکوں کو دیکھتے ہیں کہ کہاں کہاں لبرٹیز ہیں، شہری آزادیاں ہیں، ڈیموکریسی ہے، ہیومن رائٹس کے اسٹینڈرڈ، مذہبی آزادیاں اور ساری چیزوں، میڈیا کہاں تک آزاد ہے. وہ رپورٹ میں دیکھ رہا تھا، اس رپورٹ کا اگر آپ دیکھ لیں نا جو تازہ رپورٹ ہے اس میں خود امریکہ کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ڈیموکریٹک ویلیوز پہ، ہیومن رائٹس سٹینڈرڈز پہ، خاص طور پہ 9/11 کے بعد وہ گریجول یعنی ڈاؤن فال کی طرف جا رہے ہیں. چلی سے بھی نیچے ہے وہ. لیکن اب 2021 کی تازہ ترین رپورٹ میں انہوں نے اس کو سیمی یعنی ناٹ ایک ہوتا ہے نا انڈیپینڈنٹ سول لبرٹیز میں انہوں نے لکھا کہ پارشلی انڈیپینڈنٹ، یعنی پارشلی کا لیول وہ بھارت کا بھی وہی ہے، یعنی انڈیا اور امریکہ کو انہوں نے ڈاؤن گریڈ کرتے ہوئے اس پہ لکھا ہے. باقی ملکوں کی طرف بھی آ جائے آپ دیکھیں، اگر اسی رپورٹ کا میں آپ کو حوالہ دوں
तो एशिया का देख लेते हैं, एशिया पैसिफिक, फिर हम इसमें ज़ाहिर है चाइना पे भी आ जाएंगे और बाकी हांगकांग की बात करते हैं। ये बैकग्राउंडर मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि पता चले कि वो स्टैंडर्ड कोई एक नहीं होता है। ठीक है। और अगर पूरे स्टैंडर्ड जैसे फ्रीडम हाउस ने अपना एक स्टैंडर्ड रखा, उस स्टैंडर्ड पे देखें तो आप सारे ही फारेग हैं उसमें। ठीक है, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स में। अब 39 कंट्रीज का अगर उन्होंने जो इंडेक्स में दी है रिपोर्ट में अपने फ्रीडम हाउस ने, फ्रॉम एशिया एंड पैसिफिक। अच्छा। अब 39 में से 44% ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे वो किसी हद तक कहते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को या जो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक, यानी जो अमेरिका और वेस्ट का जो स्टैंडर्ड है, जो फ्रीडम हाउस ने भी उसको रखा है, उसके मुताबिक है। बाकी जो 56% है वहाँ पे या तो डेमोक्रेसी बहुत बुरी हालत में या सेमी यानी पार्शली इंडिपेंडेंट टाइप डेमोक्रेसीज हैं। ये ओवरऑल एशिया की बात कर रहे हैं। इसमें वो कहते हैं कि सिंगापुर में भी बुरे हालात, अब हम कहते हैं कि बड़ी मैशत है, बड़ा वेस्ट का वहाँ पे इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो एशिया में रहते हुए खुद सिंगापुर में भी डेमोक्रेटिक सिचुएशन बहुत ही डाउनफॉल की तरफ है। मैं एक मिसाल और आपको देना चाहूँगा कि उन पे क्यों नहीं उठाते आवाज़, ये आपका सवाल ये था ना, तो मैं इस हवाले से ये बैकग्राउंडर बता के फिर मैं उधर आता हूँ। आपको मैं मिसाल देता हूँ थाईलैंड की। ठीक है। थाईलैंड में 2014 में वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता उलट के वहाँ पे मिलिट्री जनरल इक़्तिदार में आ जाते हैं, मार्शल लग जाता है। उसके बाद 2016 में वो कहते हैं जी कि हम, वो उस वक्त भी कहते हैं इलेक्शन कराएंगे, लेकिन वो इलेक्शन चलते चलते आगे 2019 तक चले गए, 5 साल के बाद हुए। और वो 2019 के इलेक्शन भी क्या हुआ, पहले उन्होंने क्या किया, इलेक्टोरल रिफॉर्म की। 2016 में चूँकि वहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट्स चली कि जी डेमोक्रेसी दी है और मार्शल्ला है, उसके बाद 2016 में इस पे काम शुरू, और 2017 में उन्होंने आइन ही बदल दिया। और आइन क्या है, आप ये देखें कि ऊपर बादशाह है यानी किंगडम है, थाई किंग है, नीचे कौन वजीर आजम है, वही जनरल जिसने मार्शल लगाया था उस वही वजीर आजम बने। कैसे बने, थोड़ा सा मैं वो बताऊं, बड़ी दिलचस्प बात है कि वो वहाँ पे ये लोग नहीं बोलते, वहाँ सारों के रीजनल हेडक्वार्टर थाईलैंड में, चाहे वो अमेरिकन हो, वेस्टर्न हो, पूरे हों। बैंकॉक इज अ हब ऑफ इंटरनेशनल रीजनल हब्स। वहाँ पे इनको नजर नहीं आता क्योंकि वहाँ ला मैजेस्टी लॉ है। वहाँ पे जो उन्होंने बताया कि किंग के खिलाफ बात करने वाला फारिग, ये वहाँ का लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसको अपहेल्ड किया 2017 के कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उस कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने, जैसे हमारे यहाँ दो ऐवान की पार्लियामेंट है ना, हमारे यहाँ नेशनल असेंबली और सेनेट है, उन्होंने उस दो ऐवानों के मजमूए को नेशनल असेंबली कहा है। उसमें एक सेनेट है और एक हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है। सेनेट के 250 अरकान हैं जो मिलिट्री नॉमिनेटेड हैं, उसमें कोई इलेक्शन नहीं, और उस हुकूमत में भी अच्छा खासा पोर्शन उन्होंने रखा हुआ है। अच्छा, दूसरे 500 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर हैं, जिसमें से 150 खुद ब खुद इलेक्ट होंगे, 350 डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है। उनके भी अपने तरीके हैं। और उसमें फिर ये कि ऐसा बनाया गया उसको कि लाजमी तौर पे वहाँ मिलिट्री शुड बी इन ए पोजीशन। दैट्स वाई जो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे वो वहाँ के वजीर आजम है। वहाँ पे छोटे मोटे प्रेस्ट होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक्सेप्टेबिलिटी इसलिए होती है, एक्सेप्टेबिलिटी इन द सेंस कि वो गवर्नेंस के अंदर सिर्फ उनका रोल होता है, बाकी पब्लिक सेक्टर में वो इतना इंटरफेयर नहीं करते। कोई अपना जो भी बिजनेस करे, जो कर रहा है, उनको हर चीज़ को वो कंट्रोल नहीं करते। मतलब कहने का ये कि एशिया की ये जो फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, फिर बीबीसी का भी जो एशिया प्रोफाइलिंग है, उनमें भी उन्होंने इसी किस्म के सारे के मीडिया में भी बड़े बुरे हालात हैं। अब आ जाते हैं इधर, यहाँ क्या हुआ। अभी पहले हम रिसेंट इलेक्शन का जिक्र कर लेते हैं, उस पर जो क्रिटिसिज्म, फिर उसके बाद थोड़ा सा हिस्ट्री पे भी बात करेंगे। अभी जो मंडे को इलेक्शन हुए, उसके जो नतीजे, संडे को जो इलेक्शन हुए, उसके रिजल्ट जब आए हैं मंडे को, अगर उसको कैलकुलेट करें, 90 सीट्स में से 82 सीट्स ऐसी हैं जो चाइना यानी जो मेन लैंड चाइना की पार्टी है वो वहाँ जीती है। बाकी 8 में बाकी और पॉलिटिकल एफिलिएशन के लोग हैं। एक उसमें वो मेंबर भी हैं जो कि जिनको कहा जाता है, जिसको वेस्ट काफ़ी उठाता है जी, वो एंटी चीन है, जिनको वो एंटी चीन कहते हैं ना, और वैसे तो पूरी कैंपेन उन्होंने उसके गिर्द बुनी हुई है, वो आ जाते हैं। अब वहाँ पे भी इलेक्शन रिफॉर्म्स क्यों हुई पहले 2019 में, आपने सर उस पे इलेक्शन रिफॉर्म्स हुई, उससे पहले एक जब वो जो ये बड़े मुजाहिरों को ये हवा देते रहे 2019 और उस पे लेके बड़ा देर तक चलता है। इस पे सर बात करते हैं, एक ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो जरा तफसील से इस पे बात करते हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक छोटा सा ब्रेक, फिर भी राइट बैक।
جی वेलकम बैक। बात हो रही है चीन के खुसूसी इंतज़ामी इलाके हांगकांग में जो अभी इंतखाबात हुए हैं कानून साज कौंसिल के, उस हवाले से जो एक क्रिटिसिज्म वेस्ट की तरफ से आ रहा है, उस बारे में डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर साहब, आप जो जिक्र कर रहे हैं कि इंतखाबात हुए, मुझे ये याद है अच्छी तरह कि वो जो उससे पहले कानून जो बनना था, उस कानून के ऊपर, उस बिल के ऊपर बहुत वक्त सर्व किया गया और बहुत सारे जो वहाँ के सो कॉल्ड प्रो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनके भी उसमें मुशावरत शामिल रही, तब जाके वो इम्प्लीमेंट हुआ है। उसके बाद जाके ये सारा सिलसिला हुआ। ये देखिए, जब ये जो लॉ, वहाँ दो चीज़ें उन्हें तब्दील करना पड़ी। उसका मैं बैकग्राउंड अभी बताता हूँ। पहली तो है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स, ठीक है। दूसरा वो जो नेशनल सिक्योरिटी लॉ का जो स्पेशल इसे खुसूसी इलाके के लिए जो सिक्योरिटी लॉ बनाया गया, और उसमें भी ये था कि यूँ कहीं यहाँ पे अलहदगी पसंद तरीकें बड़ी तेज़ी से सर उभार रही थी, उनके लिए उन्होंने रिफॉर्म किए। और उस पर चीन ने बड़ा कैटेगोरिकल मौक़िफ़ उस वक्त भी लिया, अभी भी ले रहे हैं कि ज़ाहिर है वो हमारा शहर है, हमने उसको प्रोटेक्ट करना है, वो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में आता है। तो कोई भी मुल्क अपना शहर किसी के हवाले या दहशत गर्दों के हवाले तो नहीं कर सकता। अब आप न्यूयॉर्क को क्या किसी और के हवाले कर सकते हैं? नहीं, वो तो वहाँ पे भी चल रहे हैं कुछ ऐसे जो इंडिजिनस कम्युनिटी से अभी तक आपके वही मामला। नहीं, आप ये देखें, बरतानिया का देख लें ना, अब स्कॉटलैंड को देख लें। स्कॉटलैंड को मतलब ब्रिटिशर जो मेन लैंड यानी इंग्लैंड जिसको कहते हैं, वहाँ के लोगों की ये फीलिंग है। मतलब जब मैं स्कॉटलैंड था तो एक दो ने मुझे कहा कि जी अच्छा आप हमारे मुखालिफ टेरिटरी में हैं इस वक्त। तो मतलब ये कि वहाँ ही फिर आप उनको भी आज़ादी दे दें, वो वहाँ पर तो 100% डेमोक्रेसी वो है, आप चला रहे हैं। हालिया तारीख में हमने देखा सर, स्पेन में वो कैटालोनिया वाले बहुत सारे ये अपने मामलात हैं, अपने मामलात पे नहीं आते। अब यहाँ हम चूँकि हमारा फोकस ये है तो इधर हम आ जाते हैं। अब यहाँ पे जब इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई, उसमें देखा गया कि, और इसका बैकग्राउंड वही था 2019 के जो प्रोटेस्ट थे और जो वायलेंट प्रोटेस्ट, सिंपल प्रोटेस्ट अलग बात है, जो जिनको हम प्रो डेमोक्रेसी कह लें, वो उनकी टर्म में, और यहाँ चाइनीज टर्म में वो उसको कहते थे वायलेंस है, और ये स्टेट को नुकसान पहुंचाने की बातें हैं और शहर को कामन तबाह करने की बातें हैं। यूनिवर्सिटीज डिस्टर्ब हुई, वहाँ की जो लाइफ थी, समाजी लाइफ, बिजनेस लाइफ, वो डिस्टर्ब हुई। चाइनीज का ये एंगल है, वो समझते हैं कि ये ठीक है प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट थी। उसके बाद वहाँ पे जो खुसूसी इंतज़ामी इलाके हैं उनका के हवाले से नेशनल लॉ कांग्रेस ने पास किया। और वो आपने जो बात की ना कंसल्टेशन की, वहाँ पे आपको होता है कि कानून ऐसे नहीं बन जाता, कोई एक टेबल कर दे और बन गया। उसके नीचे पूरा एक वर्किंग होती है, फिर एडवाइजर्स की काउंसिल होती है, कांग्रेस मीट करती है और वो फिर जाके वो बिल इम्प्लीमेंट होता है। इलेक्शन रिफॉर्म में भी ये देखा गया कि वहाँ पे रियल डेमोक्रेटिक जो फोर्सेज हैं, यानी हर एक की नुमाइंदगी हो जाए, बिजनेस की हो, हर तबके के लोग जो है ना वो उस पर हिस्सा बन सकें। ये रिफॉर्म्स के मुताबिक ये था। खुद अब थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देखें कि ये करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। अब आप ये देखें कि जब आपने जैसे जिक्र किया 1997 में हांगकांग हैंडओवर होता है चीन को वापस। ठीक, जब वापस होता है तो उसमें उससे चंद साल पहले तक वहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं थी। चंद साल पहले जब उन्हें पता था हैंडओवर करना, उन्होंने ये प्रोसेस शुरू कर दिया कि लोकल एक लेजिस्लेटिव बना दी, ताकि चीन जब आए तो चीन के उस निज़ाम से कॉन्फ्लिक्ट करेगा तो हम फिर इसको ड्रम बीटिंग करते रहेंगे। और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड आप ये देखें कि 1898 में गलबन, हाँ 1898 में 99 ईयर्स की लीज पे लिया था चीन से, उस वक्त की चीनी हुकूमत से बरतानिया ने ये जजीरा। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा ट्रेड रूट पट्टी, और वो आप समझ रहे हैं कि उस वक्त जैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी, इसी तरह उन्होंने वहाँ लिया। और 1938 में उन्होंने चढ़ाई कर दी चीन पे, जब देखा कमज़ोर और कब्जा कर लिया। उस वक्त वहाँ पे कोई डेमोक्रेटिक राइट्स की बात नहीं थी। हालांकि बरतानिया में उस वक्त भी डेमोक्रेसी थी, लेकिन उस वक्त हांगकांग में उन्होंने कोई डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं की, कोई राइट्स की बात नहीं, क्योंकि वो उनकी कॉलोनी था, कॉलोनियल निज़ाम से उसको चलाते रहे। उसके बाद जब ये हैंडओवर की बात हुई, उससे पहले इन्होंने ये सिस्टम बना दिया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर तो वाकई डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी बात थी तो उसी वक्त इस्टेब्लिश करते और कहते जनाब हम हैंडओवर नहीं कर सकते, और हैंडओवर करेंगे तो हम तो डेमोक्रेटिक सिस्टम जो हमारा उसके मुताबिक करेंगे, आप चीन ने लेना है लेन वरना ने। लेकिन उन्होंने वो दिया, डॉक्यूमेंट पे साइन किए, डॉक्यूमेंट में क्लियरली लिखा हुआ है, जो यानी हैंडओवर का जो डॉक्यूमेंट है बरतानिया और चीन का, कि यहाँ पे एक मुल्क में दो निज़ाम होंगे। और दो निज़ाम में ये नहीं लिखा था कि बरतानवी निज़ाम होगा या कोई इंटरनेशनली डिफाइंड कोई डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा, बल्कि दो निज़ाम है कि एक तो चीन का क्लियर कट कम्युनिस्ट पार्टी रन सिस्टम है, दूसरा ये कि यहाँ मुख्तलिफ पार्टियाँ, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल जो चंद साल पहले उन्होंने बना दी ताकि ये एक सिस्टम चला सकें शहर का,
तो ये वो चीज़ थी। असल में तो ये था कि एक सिटी की इंतज़ामिया चलाने के लिए जो एक लोकल लेवल की चीज़ होती है वो चीन के बाकी इलाकों में भी होती है, वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स हैं, लोकल सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन यहाँ चूँकि हैंड ओवर के डॉक्यूमेंट में था कि 2 सिस्टम है। अब यही सेम चीज़ मकाओ में थी, ठीक है, मकाओ में वहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे कोई इफ एंड बट्स डाल के उसको हैंड ओवर नहीं किया गया। वो चीन का हिस्सा था, चीन के पास आ गया, ये भी चीन का हिस्सा था, चीन के साथ आ गया। लेकिन इसमें थोड़ा सा उन्होंने अपना वो एक क्वेश्चन रखने के लिए बैकग्राउंड के तौर पे उसको रखा। इसी तनाजुर में ये जो सारी बहस है इसको क्लियर करने के लिए चीन ने अपना मौक़िफ़ वाज़े किया, अपने जो इन्होंने हक़ाइक़नामा जारी किया, वाइट पेपर जारी किया, उसमें इसका पूरा बैकग्राउंड बताया कि ये सारी चीज़ें क्यों आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक चली। जब 24 साल 23 साल हो चुके हैं अलग इसको चीन का हिस्सा बने, यानी ब्रिटेन से अलहदा होकर चीन के पास आने के, तो उसमें जाहिर है कि जब पता था एक सिस्टम के तहत 1 कंट्री है और 2 सिस्टम निज़ाम, उसमें मर्ज होना है। अच्छा, फिर मैं आपको बता दूं कि जब ये 1997 में हैंड ओवर हो रहा था, उस वक्त लोगों को चॉइस दी गई थी कि आप बरतानिया की सिटीजनशिप रखना चाहेंगे या हांगकांग की। ये वहाँ पे उनको दिया गया चॉइस। अब ज़ाहिर है जिसने ऑप्ट किया वो वहाँ चले गए, बरतानिया में रह रहे हैं। उसमें बहुत सारे वो लोग भी जो यहाँ वहाँ बैठ के यहाँ के खिलाफ लगे रहते हैं, हांगकांग के खिलाफ। उन्हीं की वॉइस से उनके इंटरव्यू आप देखें, चाहे राइटर हो, BBC हो या इंटरनेशनल मीडिया, उनके इंटरव्यूज चला के वो कहते हैं जी ये तो इलेक्शन बड़े कंट्रोवर्शियल हैं, इलेक्शन तो ये नहीं हुए, या जमहूरियत का उनके जहन में जो कंसेप्ट है वो हो सकता है वो उनके हिसाब से तो ज़ाहिर है ठीक होगा, लेकिन यहाँ के सिस्टम के मुताबिक, जैसे मैंने आपको एशिया की ओवरऑल सिचुएशन बताई है, तो हर कंट्री का अपना अपना एक सिस्टम है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को चलाने का। तो उसका कोई एक यार्ड स्टिक नहीं है कि उससे पैमाइश करेंगे तो जमहूरियत उसमें से निकलेगी। तो चीन ने जो वाइट पेपर यानी जो हक़ाइक़नामा जारी किया, उसमें कोर इशू उन्होंने यही बताया कि बेसिक कोर इशू ये है कि हैंडओवर के टाइम ही ये थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट क्रिएट किया गया ताकि बाद में इस पर पॉलिटिक्स की जा सके। और फिर उसका उन्होंने हवाला दिया वाइट पेपर में कि किस तरह वेस्टर्न अमेरिकन ये डिप्लोमेट उनसे मिलते रहे और किस तरह उनके बारे में ये स्टैंड लेके कोशिश करते रहे कि उनको बाहर जाए, और जिसके नतीजे में अल्टीमेटली एक वायलेंट कैंपेन चली 2019 में। और यही एक कोर इशू था जिसको जाहिर है कि चीन ने इसमें लिखा है वाइट पेपर में कि हम ये चाहते थे कि हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी है, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, वो डैमेज ना हो। और फिर उन्होंने कहा कि अगर आपने डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी तो वहाँ उस वक्त इस्टेब्लिश करके देते। चंद साल पहले हमें एक ऐसी अनएस्टेब्लिश कच्चा पक्का सा आपने निज़ाम बना के हमें दे दिया, तो हमने तो अपने हिसाब से बनाना है उसको। अब जाहिर है चीन बरतानिया के निज़ाम के मुताबिक तो नहीं बनाएगा ना, या अमेरिका के, तो वो अपने सिस्टम में रहते हुए यानी ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जिसको वो कहते हैं पीपल्स डेमोक्रेसी, उसके मुताबिक लेके चलेंगे। तो इसमें ये सारी चीज़ें जो ये जो वाइट पेपर है इसमें इसको क्लियर किया गया और इसमें हवाला दिया गया कि जब एक जॉइंट डिक्लेरेशन था बरतानिया और चीन के दरमियान हैंडओवर के हवाले से, उसको क्यों नहीं साथ लेके चला गया, इसको आगे कैसे लेके चलेंगे। फिर जितनी डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से जो चीज़ें आ रही थी उस सब में बाद में ये पता चला कि उनके पीछे बहुत सारा ऐसे ग्रुप्स थे जो बाहर बैठ के वहाँ पे उसको हवा दे रहे थे। और ये जब ये मुजाहरे हो रहे थे सर, उस वक्त ताइवान से भी बहुत सारे ग्रुप जो है ना यहाँ पे, और उस वक्त मुझे याद है वो नैन्सी पेलोसी जो थी, उन्होंने कहा कि जी ये देखिए ये है जमहूरियत और ये सारा कुछ, ये मुझे ये जमहूरियत के रंग हैं ये सारे, ठीक है। जब वो आप के अपने यहाँ वहाँ पे होता है कैपिटल हिल पे, तो आप उसे कहते हैं नहीं ये वैंडलिज्म है और ये सारा कुछ है। तो ये सर दोगलापन जो है वो तो हमें नज़र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हांगकांग की जब हम बात कर रहे हैं, एतराज़ इस पे क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये चीन का हिस्सा है, या ये कि इसमें कोई हम ये कह लें जैसे भी आप कह रहे हैं बहुत एक अहम गुजरगाह भी है, मतलब देखा जाए तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा एक अरसा दराज से एक बड़ा अहम खिता ये रहा है। क्या तकलीफ क्या है? मकाओ को नहीं इतना डिस्टर्ब करते लेकिन इसको करते हैं। इसमें देखें ना, जो इसमें जो मैं बात करूं, जो वाइट पेपर ने भी कहा कि पहले से एक बैड इंटेंशन शामिल थी और एक शुरू से ही एक पॉलिटिकल एक जो होता है ना सौदेबाजी वो थी। मतलब देखें ना आपने इसमें भी तो था ना कि मुझे यहाँ तक याद पड़ता कि शायद कुछ अरसे के बाद जो है वो फिर ये ऑप्ट कर लेंगे कि आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं। अभी तो एक मुल्क दो निज़ाम के तहत चल रहा है। डॉक्टर साहब इस पे मजीद बात करते हैं, एक ब्रेक है और फिर गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन साथ कीजिएगा।
वेलकम बैक नाजरीन। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि असल में ये अपने अल्टीरियर मोटिव्स इनके रहे हैं, और तभी हम ये देखते हैं कि अमेरिका जब उसके ताल्लुकात चीन के साथ उस्तवार होते हैं 70s में जाके सिफारती ताल्लुकात, तो वो 3 जॉइंट डिक्लेरेशंस जो थी उसके ऊपर वो साइन भी करते हैं, और उसके बाद फिर अभी तक वो दहाइयाँ गुजरने के बावजूद आज भी वो ताइवान के मामले पे उनका एक दोहरा मयार नज़र आता है। यही चीज़ हमें हांगकांग के इशू पे नज़र आती है। तो ये असल में जो हम एक बात करते आ रहे हैं कि जो तकसीम अब हमें बहुत वाज़ेह नज़र आना शुरू हो गई मशरिक़ और मगरिब की, तो ये उसी डिज़ाइन का हिस्सा ही हम इसे बिल्कुल। आप ये देखें ना कि उनके इत्तेहादी जो एशिया में वो ये स्टैंड क्यों नहीं लेते? ठीक है, उनके यानी वेस्ट के जो एशियन इत्तेहादी हैं, जिसमें मैंने बताया साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज हैं, जापान है, वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड क्यों नहीं लेते? उसकी वजह ये कि उन्हें पता है कि खित्ते की रियलिटीज़ हैं। जाहिर है कि जब आपने 99 ईयर्स की लीज पे खिता लिया, वो वापस तो जाना ही था ना, और जबकि वो मुल्क एक ट्रांसफॉर्म होकर कम्युनिस्ट पार्टी के तहत एक नए चीन के तौर पे सामने आया, अवामी जमहूरियत चीन, तो वहाँ पे सिस्टम वो चलेंगे। अब मैं इसमें ना 2 चीज़ें यहाँ बात करना चाह रहा हूँ। एक तो ये जो वाइट पेपर है, दिस इज नॉट द फर्स्ट इन सीरीज में। आप देखेंगे ऐसे 2-3 डॉक्यूमेंट आए, और दिसंबर में ही इसको देखें तो 2 डॉक्यूमेंट आए। 4 दिसंबर को आपको याद होगा कि जब ये डेमोक्रेसीज की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, समिट हो रही थी ऑन डेमोक्रेसीज, उस वक्त भी एक वाइट पेपर आया था कि चीन की जमहूरियत कैसी है। उसको हमने उस पर प्रोग्राम भी किया था, वाजे किया था कि किस तरह वहाँ पे असल में डेमोक्रेसी का ये होता है कि वो पीपल्स लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे रिप्रेजेंटेटिव है या नहीं। ठीक है, सिर्फ टॉप लेवल पे आप लॉ मेकर चुन लेते हैं, वो तो एक अलग बात है, वो गवर्नेंस का एक पार्ट है। दैट्स नॉट द होल गवर्नेंस। गवर्नेंस के जो बाकी टीयर्स हैं, जिसमें सर्विस डिलीवरी है, लोगों को फैसिलिटीज़ देना है, डेवलपमेंट का काम करना है, लोगों को हेल्थ की फैसिलिटीज़ देना है, एजुकेशन में जाना है, और ये कि पीपल्स का जो मॉरल बूस्टिंग करनी है और उनकी इनकम बढ़ाने के लिए पॉलिसीज़ को जनरेट करना है, और उन पॉलिसीज़ की बुनियाद पे लोगों में जो गुर्बत है उसको ख़त्म करके उनको प्रॉस्पेरिटी की तरफ ले जाना है। तो ये वो डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं कि आप जो है ना 40-50 या 100-200-500 लोग इलेक्ट करके असम्बली में भेज दें एंड दैट्स ऑल, डेमोक्रेसी फारिग होगी। वो तो एक पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं देखें ना, अगर आपके इलेक्टेड नुमाइंदे जाते हैं तो वो वहाँ बैठ के उन फॉर्मों में, चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पे हैं या ऊपर की सतह पे जाते हैं, वो वहाँ बैठ के आपकी बात करते हैं, लोगों को फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, या जो बड़े लेवल पे वो लॉ मेकिंग की बात करते हैं। इसी तरह हांगकांग का भी अगर आप ये देख लें ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये लॉ मेकिंग का एक प्रोसेस है। वहाँ पे जो भी अगर वहाँ को मुकामी सतह का कानून बनना है, मुकामी टैक्सेशन की बात होनी है, वो अपने तौर पे सारी चीज़ें करेंगे। फिर इसकी बुनियाद पे वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन जो चलानी है उसको देखते हैं वो। लेकिन उसके नीचे बाकी क्या होगा, यानी वहाँ पे डेवलपमेंट के काम, बाकी चीज़ें, मसलन पहले जो वहाँ पे एक सिस्टम था अदर देन चीन की जो डेमोक्रेसी जिसका मैंने जिक्र किया कि उन्होंने एक पेपर 4 दिसंबर को भी जारी किया, उसमें पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को वो कहते हैं हम यकीनी बनाते हैं। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और चीनी लीडरशिप का कहना यह है कि अपने जो हक़ाइक़नामे में कि हम चाहते हैं कि नीचे की सतह पे और तमाम सतह के लोग उसमें शामिल हो, चाहे वो इंजीनियर हों, टेक्नोक्रेट्स हों, एग्रीकल्चर के लोग हों, डॉक्टर्स हों, या वाइट ब्लू पिंक इसी तरह अभी यहाँ पे जो हांगकांग में भी जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की गई हैं, वहाँ ये नहीं कि बस एक जो भी नॉमिनेशन के लिए आए, चाहे वो कुछ जानता है नहीं जानता, वो वोट लेके आके वहाँ पे पॉलिसी में, यहाँ पे उन्होंने रखा कि हर फील्ड के लोग उसमें जाएं, टेक्नोक्रेट्स जाएं, एग्रीकल्चर के लोग जाएं। इन रिफॉर्म्स की वजह से वहाँ पे जो ये पहला इलेक्शन हुआ इन रिफॉर्म्स के तहत, इसको क्रिटिसाइज जो वेस्ट कर रहा है वो उसको अपनी है ना कि अपने एंगल से देख रहे हैं कि शायद ये उनके डेमोक्रेटिक सिस्टम से, चुके ऑब्वियसली ये उनसे तो क्लैश करता है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। लेकिन ये जैसे चीन कहता है कि चीन में चीनी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ सोशलिज्म है, इसी तरह वो कहते हैं कि हांगकांग में हमने एक ऐसा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाया है जो हांगकांग के कैरेक्टरिस्टिक के साथ डेमोक्रेसी है, नॉट वेस्टर्न। ये उन्होंने व्हाइट पेपर में बड़ा क्लियरली चीनी जो लीडरशिप है उन्होंने ये वाजे किया। अब वहाँ ये देखना है कि आप उसको अपनी एंगल से चलाना चाहते हैं तो पहले आप देखें कि आपके अपने मुल्कों में क्या है, क्या आप वहाँ पे वो स्टैंडर्ड मेंटेन कर पाए हैं। मैंने आज डिस्कशन का आगाज ही फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट से किया जो बताती है कि डाउन ग्रेड हुए हैं ये, यानी सारे जितने वेस्टर्न स्टैंडर्ड की डेमोक्रेसी जिसमें कम से कम 2-3 ये ममालिक हैं वहाँ पे डाउन ग्रेड हुए। फिर कोविड के हवाले से प्रोटेस्ट हुए,
उस पे उन्होंने वायलेंस भी हुई, पुलिस ने भी एक्टिविटी की। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि स्कॉटलैंड का भी इशू है, इस तरह बाकी भी और इंडिजिनस कम्युनिटीज़। और फिर अमेरिका में देखें, वहाँ पे ब्लैक्स हैं, उनके इश्यूज अपनी जगह हैं, ब्लैक लाइफ मैटर की बात होती है। फिर वहाँ इस्लामोफोबिया, फिर वहाँ पे और जो जितने जनरेशन के लोग हैं उनके खिलाफ एक नफरत अंगेज़ी वहाँ पे पाई जाती है। हालांकि अमेरिका की जो सोसाइटी इनबिल्ट है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, उसके मुताबिक तमाम शहरी अमेरिकन सिटीजन इक्वल हैं, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं जी ब्लैक अमेरिकन, ये लैटिन अमेरिकन, वो तो लैटिन अमेरिका तो अलग है, यानी अमेरिका में रहते हैं, वो कहते हैं लैटिनोज, उनको पता नहीं क्या कहते हैं, एशियन अमेरिकन, फलां अमेरिकन, वहाँ आपने क्लासीफाई कर दिया। और उस क्लासिफिकेशन में क्या है, आप वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन है। क्या वो रिप्रेजेंटेटिव होकर आते हैं? फिर आप ये देखें कि इतनी बड़ी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी जब हम अमेरिका की कहते हैं, उसमें आज तक कोई खातून प्रेसिडेंट आप नहीं ला सकते। ठीक, बड़ी डेमोक्रेसी है, राइट्स एंड इक्वल राइट्स की बात करते हैं ना। अब कामला हैरिस जो आई हैं वो नायब सदर आई हैं। फिर एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट हिस्ट्री से, क्योंकि अभी हम तो रिसेंट हिस्ट्री जानते हैं ना, अमेरिका में 44 सदूर का अगर आप जायजा लें, 33 उसमें वो हैं जो मिलिट्री से रिटायर्ड ऑफिसर थे, अमेरिका के सदर बने। ठीक है, बैकग्राउंड उनका रहा, बेशक वो इलेक्ट होकर डेमोक्रेटिक आए, लेकिन जब वो उस माइंडसेट से आते हैं तो कहीं ना कहीं तो वो चीजें होती है ना। और यही वजह है कि वहाँ पे जो पुलिस ब्रुटैलिटीज की बात होती है अमेरिका में सबसे ज्यादा, कि जैसे आपने देखा जिस तरह उसको क्लाइड को जिस तरह उन्होंने गर्दन पे वो रख के उसको मारा गया, ये सारी चीजें क्यों हैं? ये ब्रुटैलिटी, उस सुपीरियरिटी का जो कॉम्प्लेक्स होता है उसकी वजह से ब्रुटैलिटीज भी आती हैं। तो आप उसको इस तरह देखें कि आप उसको कहेंगे जी हमारे सियासी मफादात हैं, हमें यहाँ कंसेशन चाहिए, चीन हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम हांगकांग से अपने दफातर, अपने बैंक और इनको चला सकें, और हम आपसे मायदा करते हैं। तो ये तो सीधी सीधी सी बात है ना, आप अपनी बिजनेस स्टॉप करें, ठीक है, बिजनेस बात करें। चीन कहेगा ठीक है, अगर आप बिजनेस करें, अगर नहीं उनको वारा खाएगा वो कहेंगे नहीं जी ये नहीं हो सकता। लेकिन उसमें इंटरेस्ट करके और ये सारी चीजें का देखें, मसला ये कि आई हैव नथिंग वो डेमोक्रेसी, मैं तो खुद डेमोक्रेसी को एक आइडियल सिस्टम समझता हूँ, अगर प्रोवाइडेड, अगर ये रियल सेंस लोगों के लिए हो, लोगों की रिप्रेजेंटेटिव हो और लोगों के लिए काम करे, ना कि एलीट या असला की जो इंडस्ट्री है अशराफिया वो ले जाए। जमहूरियत में कोई नुकसान है। बात ये कि जमहूरियत को जो फोर्सेस डोमिनेट करती हैं वो ये होती हैं, अगर जमहूरियत को ग्रास रूट लेवल पे इस्टेब्लिश किया जाए, जहाँ पे सर्टनली लोग वो आएँ जो किसी लॉबी के बगैर अपने वोट के जरिए या अपनी जो कम्युनिटीज हैं उनके जरिए आए, तो उस वक्त वो उसको हम कह सकते हैं कि रियली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो उसके अगर उसके आड़ में तो आप ना करें, अगर लोगों को वो सर्व कर रही है, वहाँ पे जो सिस्टम है, वहाँ पे लोग वहाँ रह रहे हैं ना, उन्होंने ऑप्ट किया उस सिस्टम में रहने को, तो वो सिस्टम तो वहाँ इवॉल्व होगा और वो स्टैटिक नहीं रह सकता। अब ये हुआ, हो सकता कल को वहाँ पे और रिफॉर्म्स करें, क्योंकि वहाँ पे एक डिफरेंट निज़ाम है डेमोक्रेसी की। वो इंटरनेशनल कोई ऐसी डेफिनेशन तो नहीं है ना, उसको वो अपने तौर पे डिफाइन करते हैं, आप डेमोक्रेसी को अपने तौर पे करते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट वहाँ आता है जब डेमोक्रेसी की आप डेफिनेशन करते हैं या वो यार्डस्टिक इस्तेमाल करते हैं। जो चीन के नज़दीक जो उनका निज़ाम है, वो समझते हैं कि वो ज़्यादा पीपल रिप्रेजेंटेटिव है, अवामी जमहूरियत का ज़्यादा उसमें कॉन्सेप्ट है। आप समझते हैं कि आपकी जो डेमोक्रेसी वहाँ वो एक आइडियल डेमोक्रेसी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट इस तर्ज हुक्मरानी का है कि क्या सिस्टम होना चाहिए, और इसको आप बिल्कुल खुल के बात कर लें उनसे, अपने मफादात अगर कोई है चीन से जरूर एग्रीमेंट करें, लेकिन जो एग्रीमेंट हुए हुए वन कंट्री जरूरी है टू सिस्टम वाला, उसकी पासदारी करें और उसमें मुल्कों में कोई तो इस किस्म के कॉन्फ्लिक्ट नहीं होने चाहिए। बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब, और इस पे हम ये तर्ज हुक्मरानी और तर्ज हुकूमत पे पूरा एक प्रोग्राम जो भी हम कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का और आपके वक्त का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और अब इजाज़त दीजिए, आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।